Hello guys, welcome to the channel. We are doing the polity series of M. Lakshmikant 7th edition and we have already covered chapter 1 till the company rule. That is the historical background part 1 that has been covered in the previous video. If you haven't watched that, please go and watch that first and then come here and watch the part 2 where I'll be probably, finishing the chapter here only. So the very first event that happened was in 1600. East India Company got their charter. Okay, East India Company got the charter from the Queen. That is a trade permit. In 1608, they established the company in India. So East India Company now have been established in India. And in 1765, they got the Diwani right. Why? Because Battle of Buxar happened and Shah Alam gave Diwani rights to the company. तो यहाँ से Diwani rights मिल गए इनको. And after getting the Diwani rights of Bengal, Bombay and Madras, they emerged as a territorial power. Okay, this was the thing that happened. Then let's move forward to the regulating acts and charter acts. And the very first regulating act that happened was in 1773. Right? So in 1773, government for the first time started to control and regulate the company's affairs and give them a political push. Okay, political and administrative push. Okay, East India Company. And what happened? There was some the East India Company started to act as a central power. Okay, as a central power. And some features or significance, this was a significance, some features of the acts we are going to discuss right now very quickly. Features were that क्या हुआ था, Supreme Court established हुआ था, right? SC was established in just 1 year after this, 1774 in Calcutta. Then Supreme Court हुआ, इसके बाद servants को, if you remember, prohibit कर दिया गया था from doing any trade, private trade, and I will write private trade, and from receiving any presents or bribes, right? Okay, this was the thing that happened. Then after that, amending act was happened, right? Amending act of 1781 happened, and then in this all the defects that were there in the 1773 was abolished, right? Defects was turned into improvement. And then features was that now Supreme Court के regulation में provincial courts थे, right? and ये Supreme Court खुद गवर्नर जनरल के कंट्रोल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सुप्रीम कोर्ट खुद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंट्रोल में था, राइट? रेगुलेशन एंड कंट्रोल अब गवर्नर जनरल कर रहे हो रहे थे. और ये जो गवर्नर जनरल है, इनकी काउंसिल है, और जो सर्वेंट्स है ईस्ट इंडिया कंपनी के, नाउ दे वर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. लाइक वट एवर एक्ट्स दे आर डूइंग इन देयर ऑफिशियल, in their office, of whatever official act, they will not be held punishable for that in any manner, or no proceedings will be there to them from the Supreme Court. So Supreme Court से पूरी तरीके से immunity मिल गई थी इन्हें, ठीक है, immune from the judiciary. Then what happened? That happened the Pitt India Act, right?
Pitt India Act of 1784. In this, the company turned into dual governance, यानी ठीक है dual government start हो गया. Then इस dual governance में क्या provisions थे? एक court of director था, एक board of control था. Court of director was for the commercial purpose, right? And board of control was for the administrative purpose. यही हुआ था. दो significance थे इस act के. एंड वो सिग्निफिकेंस क्या था? पहला था कि जो प्रोविंसेस थे ना, या जो भी टेरिटरीज अब कंपनी के अंडर थी, वो अब क्या कहला रही थी? ब्रिटिश पोजेशन कहला रही थी. एंड अब कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी. ठीक है, गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल अब आ चुका था. ठीक है, दिस हैपेंड. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ है हमारा 1786 का एक्ट, जिसके थ्रू डिमांड्स, कॉर्नवालिस के डिमांड्स, राइट, कॉर्नवालिस के डिमांड्स को पूरा किया गया. जिसमें से पहला डिमांड था उनका कि उनको कमांडर एंड चीफ बनाया जाए, राइट. सेकेंड डिमांड उनका था कि उनको ओवरराइडिंग पावर्स दी जाए, राइट. सो ओवरराइडिंग पावर्स इन टर्म्स ऑफ स्पेशल केसेस अपॉन होम, अपॉन हिज काउंसिल, यू नो, जो ये 4 मेंबर्स काउंसिल थी उनके ऊपर. उसके बाद एक नेक्स्ट एक्ट आया दैट वी कॉल एज द चार्टर एक्ट. सो चार्टर एक्ट ऑफ 86 के बाद आएगा सीधा 1793. इसमें क्या हुआ? यही जो हुआ ना, ये जो भी हुआ, इनके डिमांड्स को पूरा किया, इसको एक्सटेंड किया गया था. ठीक है, एक्सटेंड किया गया किनके ऊपर? फ्यूचर गवर्नर जनरल. ठीक है, फ्यूचर राइट गवर्नर जनरल पर, और गवर्नर ऑफ प्रोविंस, राइट. एंड गवर्नर जनरल वाज नाउ मोर पावरफुल. यहाँ पे इनका 20 ईयर्स के लिए ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया था, यानी कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को. प्रोविंसेस अब बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल में आ गई थी इनके. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो थी ना, अब दे कैन इम्पोज टैक्सेस, एंड लोकल गवर्नमेंट को ये पावर मिल गया था कि दे कैन इम्पोज टैक्सेस एंड कैन पनिश ऑल्सो, राइट. यही हुआ था. चलिए एक और लाइन बनाते हैं नीचे. तो आफ्टर 1793 वी विल टॉक अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जस्ट आफ्टर 20 ईयर्स. नाउ अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि अब जो ट्रेड मोनोपोली उनको 20 ईयर्स की दी गई थी वो ख़त्म हो चुका था, एंड वो ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश्ड हो गई. ठीक है, नाउ मोनोपोली एबॉलिश्ड. एंड किस में नहीं हुई थी? कुछ एक्सेप्शंस थे, 2 एक्सेप्शंस थे इफ़ यू रिमेंबर, टी में एंड ट्रेड विद चाइना. ओके, इसमें इनकी मोनोपोली अभी भी बरकरार थी. और क्या हुआ इसमें? फर्स्ट, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वेस्टर्न एजुकेशन केम, यानी आया तो नहीं, बट एक्चुअली द प्रोविज़न फॉर वेस्टर्न एजुकेशन वाज गिवन, वाज इंट्रोड्यूस्ड. एंड क्रिश्चियन मिशनरीज, राइट, क्रिश्चियन मिशनरीज, they came, they can come for the propagation of their religion, right. और क्या हुआ? You know, you can note it down also. This 5-6 minutes of writing is gonna give you too much of knowledge. Like एक पूरा notes type का बन जाएगा आपका, and you will be able to read it for 2 minutes every day. Charter Act of 1833. यहाँ पे क्या हुआ कि legislative जो था, legislative power जो था provinces का, ठीक है, legislative, I'll use another pen, legislative power जो था ये प्रोविंसेस का, प्रेसिडेंसीज के जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे ना, इनको एबॉलिश कर दिया गया था, लाइक डिमिनिश्ड कर दिया गया था. ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव पावर्स गॉट डिमिनिश्ड. अब लेजिस्लेटिव पावर सेंटर के अंडर था,
सो इनका लेजिस्लेटिव पावर अब सेंटर को शिफ्ट हो चुका था, यानी कि बंगाल को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथों में अब लेजिस्लेटिव पास भी थे इन प्रेसिडेंसीज के। और क्या हुआ, विल जैसे ही मुझे याद आएगा नोट दैट डाउन। आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 then happened, and it was the last charter act of the company rule in which legislative and executive got separated, right? जिसमें 6 members ऐड हुए थे लेजिस्लेटिव में। मतलब ये पूरे काउंसिल में जो 4 member काउंसिल थी एग्जीक्यूटिव की, उसमें 6 members ऐड हुए जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। सो दिस 6 members and this legislative council made the part of the central legislative council, ठीक है, इस नाम से जाना जाने लगा इनको। एग्जीक्यूटिव में अभी भी 4 थे, और इस 6 में से जो 4 पीपल थे ना, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। ये जो 4 मेंबर्स थे ये अपॉइंटेड थे किन से? दे वर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एंड व्हाट, आगरा। या अच्छा हाँ, मुझे याद आया, यहाँ पे बहुत ही लैंडमार्क इवेंट हुआ था, विजर को बिल्कुल भी दिमाग से हटना नहीं चाहिए। दैट इज़ यहाँ पर जाकर जो टेरिटरी थी ना, अब जो भी गवर्नर जनरल था, या जो भी, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास पूरे पावर थे। लाइक गवर्नर जनरल वॉज नाउ बीइंग कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी विलियम बेंटिक was the first governor general, right? Now the whole authority of the whole territory was under the governor general of India, okay, and William Bentinck was the first governor general over here. So this was the landmark event that happened in the Charter Act of 1833, and this was the whole framework that we have already covered in the part 1. Now we will move to the part 2, that is the crown rule. We'll start with the crown rule, and the crown rule started from the 1858 to 1947. Now here you have to remember that 1857 revolt happened, right? Here 1857 revolt happened. Why this revolt happened? See, in detail we will cover this in modern history, but right now what we have to do is we have to just remember 2-3 points, that this 1857 revolt happened because there were 2 unsatisfied classes of the society, in which one was the upper class, okay, and the second was the lower one, ठीक है। अपर क्लास क्यों डिससेटिस्फाइड थे? बिकॉज इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बार बार जो ब्रिटिश रूल था वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज़ के जो इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बार बार हार्म पहुंचा रहा था, तो अपर क्लास इससे बिल्कुल फेडअप हो चुके थे। लोअर क्लासेस इतने सारे ऑपरेशंस झेल रहे थे, सप्रेशंस झेल रहे थे ब्रिटिशर्स के, जैसे फार्मर्स बहुत ज़्यादा ही ऑप्रेस्ड हो रहे थे। सो ये भी सर से पानी इनके भी चला गया था ऊपर, सो ये भी फेडअप हो चुके थे। दैट व्हाट स्टार्टेड द 1857 रिवॉल्ट, एंड द मिडिल क्लास ना वाज न्यूट्रल। तो इसमें मिडिल क्लास का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था, बिकॉज दे वर लाइक द एजुकेशन लाइट क्लासेस। सो इनका मतलब ये बिल्कुल न्यूट्रल थे, ओके, प्रैक्टिकल लोग थे, न्यूट्रल थे बिल्कुल। ना ही ये अपर क्लास, ना ही ये इस रिवोल्ट को सपोर्ट दे रहे थे, और ना ही मतलब कुछ कर भी नहीं रहे थे, सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, ना ही अगेंस्ट थे। तो दे वर इन द न्यूट्रल पोजिशन। सो इतना ज़बरदस्त पब्लिक ऑर्डर बिगड़ा 1857 के रिवोल्ट के बाद कि गवर्नमेंट मतलब हिल गई थी, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी हिल गई थी। और अगर ये सक्सेस हो जाता, मिडिल क्लास का सपोर्ट मिल जाता, या और भी जो चीज़ें गलतियाँ हुई थी, कमी रह गई थी इस रिवोल्ट में, वो नहीं हुई होती, अगर किसी भी तरह से ये सक्सेस हो जाती, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता, ठीक है। वो इंडिया से जा चुके होते, बट क्योंकि कुछ कमियां रह गई, कुछ लोगों के पार्टिसिपेशंस रह गए, ये बच गई। एंड इसने इतना हिला कर रख दिया था कि अब गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश क्राउन थे, जो क्वीन थी, या जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उन्होंने ठाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ नाउ गेटिंग टू मच ऑफ हेट्रेड। सो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ, एबॉलिश करो, डायरेक्ट कंट्रोल लो। अब रिप्रेजेंटेशन वाला जो काम हो रहा था ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी
रिप्रेजेंट कर रही थी, अब वो रिप्रेजेंटेटर नहीं थी, अब डायरेक्ट कंट्रोल जो था अब हो गया कि अब आपका डायरेक्ट कंट्रोल हम कर रहे हैं, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहे हैं. एन एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, यू नो, revolt of 1857, also known as the first war of independence, that is the Sepoy Mutiny, and significant acts were, enacted. These acts, like the Indian Council Acts and other acts that happened, all these were said that these acts are happening for the good governance of India. Okay, good government of India. Why this good government? Because the previous government, that is the East India Company, was considered to be a bad government. So it was like कि East India Company से hatred है, इसको बंद कर देता है, and psychologically हम इन पर डायरेक्ट रूल करते हैं, so that पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर सके किसी भी तरीके से. ठीक है. So to maintain the public order, or to restore the public order, the government took over the rule and directly. एंड अब ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी है, गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल के भी नाम से बड़ी चढ़ मच गई थी लोगों को, बिकॉज इट वाज द गवर्नर जनरल ओनली हुज डिसीजंस वर गोइंग ऑन, और जो ऑपरेशन का रीज़न भी थी. सो गवर्नर जनरल के ऑफिस को बदलकर इन्होंने वॉइस रॉय कर दिया था यहाँ पे. ठीक है. तो फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज दैट it provided that India henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty. ठीक है. अब डायरेक्ट कंट्रोल वाला सीन आ गया. In the name of Her Majesty. Why? Because ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे डिससेटिस्फाइड है, तो अब इसको एबॉलिश किया जाना है. It changed the designation of Governor General into Viceroy. Okay. Let's read that. So, the Governor General office now ended, and it not ended, actually it just changed as the name of Viceroy. So now the Governor General is no more called as a Governor General, now he is called as the Viceroy of India, right? And the Viceroy was the direct representative of the British Crown. ठीक है. अब ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, बट मेंबर तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही है, तो बस नाम हटाया गया है. ठीक है, इसको समझना है. तो ही was a direct representative of the British Crown in India, and Lord Canning was thus became the first Viceroy of India. क्योंकि Governor General of India during the 1857 revolt, it was Lord Canning. तो जैसे ही पोस्ट बदला गया, Viceroy बना दिया गया, तो Lord Canning ही थे. ठीक है. तो आप देख रहे हो किसी मेंबर को हटाया नहीं जा रहा, मेंबर्स वही हैं, रूल भी वैसा ही रहेगा, बस नाम कुछ चेंज कर दिए जाएंगे, नेम्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे. वाई? बिकॉज पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो सके, साइकोलॉजिकली आप ऐसा दिखा सको कि आप जिनसे चिढ़ रहे थे अब वो लोग हट चुके हैं, अब वैसा कुछ भी अब है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन अब गुड गवर्नमेंट होगा, एंड पब्लिक का ट्रस्ट वापस से गेन कर सके. दिस बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय इन इंडिया, एंड इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. ये जो डबल गवर्नमेंट COD एंड BOC हो रहा था, ये सब खत्म हुआ. ठीक है. एंड ये देखिए, ये अबॉलिश हो गया. And it created a new office, that is the Secretary of State for India. Now अब एक नया ऑफिस आता है, that is the Secretary of State for India. जैसे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, ये हटकर अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहा है. और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिटिश कैबिनेट है. ठीक है. वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट और रिस्पॉन्सिबल था अल्टीमेटली टू ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है. डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का बंदा आया, एंड ही वॉज अबव ऑल, लाइक ही वॉज ऑल द कंप्लीट अथॉरिटी and control of Indian administration was under the Secretary State of the State of India. ठीक है. Then it established a 15-member council. Now जैसे गवर्नर जनरल के पास 4-member council थे सबसे पहले में, राइट, तो एड एंड असिस्ट. अब इसको भी असिस्टेंस चाहिए क्योंकि तो और बढ़िया से एडमिनिस्ट्रेशन करना है. दैट इज़ वाई 15-member council of India was established to assist the Secretary of the State. ठीक है. The council was an advisory body. council एक advisory body थी, और इस काउंसिल के चेयरमैन जो थे वो कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे. ठीक है. तो एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट था ये, एंड इट कंस्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है. केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड. ओके. इन पे कार्रवाई भी की जा सकती थी अगर कुछ भी लाइक माल फंक्शंस होता है या जो भी होता है. ठीक है. And the Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of the administrative machinery.
बाय विच द इंडियन, तो एक्ट ऑफ 1858 को कहा जाता है, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी बोला जाता है कि ये एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो मतलब ये देख रहे हो, ये इस तरीके से बोलने का मतलब ही ये है कि पब्लिक का ट्रस्ट गेन करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि इतना बुरे तरीके से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ चुका था। सो द एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, इम्प्रूवमेंट था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए। हाउएवर, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल्ड इन इंग्लैंड, ठीक है, जिसके यानी इंग्लैंड से लाइक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, इंग्लैंड वाज हैविंग द डायरेक्ट कंट्रोल and it did not alter any substantial way the system of government that prevailed in India. So the company rule जैसे चल रही थी, जिस सिस्टम से चल रही थी, सिस्टम वही है, बस कुछ ऑफिसर्स चेंज हो गए हैं, उनके नाम चेंज हो गए, बट जितना भी सब कुछ था सब वैसा ही चल रहा था, ठीक है। तो कोई ऐसा सब्सटैंशियल वे में चेंज नहीं हुआ था या ऑल्टर नहीं हुआ था, गवर्नमेंट अभी भी उसी तरीके से चल रही थी। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, तो अभी हमने 1858 वाला एक्ट पढ़ लिया है, अब 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट आया, दैट इज़ आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेल हो रहा है नेसेसरी टू सी कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस। अब जो मिडिल क्लास बच गए थे ना, जो न्यूट्रल थे, अब उन्होंने सोचा कि चलो ये दो तो नाराज़ है ना, अपर और लोअर क्लासेस, मिडिल क्लास बिल्कुल नॉर्मल है। तो मिडिल क्लास पीपल को ये अब चाह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन लाइक इंडियन अगर होंगे एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी में, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेगा लोगों के दिमाग पे कि हाँ, अब जो ब्रिटिश राज है वो ख़त्म हो गया है नाउ, एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग एक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन था कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, हमें भी पावर मिल रहा है, हमें भी कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, हम इंडियंस को भी कुछ वजूद दिए जा रहे हैं। तो अब लगता है कि सिस्टम वैसे चेंज हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहेगा, एंड ठीक है। तो ऐसे ये कनेक्ट बढ़ाने के लिए पब्लिक के साथ इंडियंस को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में लेना शुरू कर दिया, एंड इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, इसलिए इस चीज़ के लिए इंडियंस को इंडियंस के कॉपरेशन को मशीनरी में लाने के लिए 1861, 1892 एंड 1909 ये 3 एक्ट्स जो है इनैक्ट किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। वो क्यों है ये हम इस पिक्चर से जानते हैं। तो फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज एज फॉलोज दैट इट मेड अ बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बाय एसोसिएटिंग इंडियंस, लाइक अब इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में डाला जा रहा है, ठीक है। तो बिगनिंग हुआ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, एंड उसके साथ इंडियंस एसोसिएटेड है किसमें, लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बस नाम का था, एक्चुअली में ये कर नहीं रहे थे, ठीक है। डिसीजन फाइनली गवर्नर जनरल या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के ही अंडर रहता था। इनका बस मतलब ये होता है नाम के लिए आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है ताकि पब्लिक के साथ कनेक्ट बैठ सके, ऐसा लोगों को लग सके कि हाँ इंडियंस को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, उनके भी it does provided that the viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council। तो इसलिए एक प्रोविज़न आया कि वॉइसरॉय को नॉमिनेट करना है कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब देख लीजिए, यही से साफ साफ इंटेंशंस पता चल गया कि ठीक है आप रिप्रेजेंटेशन तो दे रहे हो लेकिन आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बना रहे हो अपने एक्सपैंडेड काउंसिल के, ठीक है। एंड इन 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो वॉइसरॉय थे उन्होंने 3 इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाला, जिनका नाम था नाम नहीं था ये, मतलब जैसे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। तो बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव को दे वर द फर्स्ट 3 members who was appointed by the viceroy and the legislative council, and इनका कोई ऐसा स्पेसिफिकली रोल नहीं था इसमें, ये बस अपॉइंटेड है। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यार बली का पकड़ा वाला बकचोदी काट देना प्लीज, स्टार्ट करते। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो हमने देखा था ना, अभी जस्ट हमने रिवाइज किया था कि 1833 में इनके लेजिस्लेटिव पावर्स को
छीन लिया गया था। लाइक अब लेजिस्लेटिव पावर यानी लॉ मेकिंग स्टफ इनके अंडर नहीं थी, ठीक है, क्योंकि पूरा अथॉरिटी किसके अंडर थी, विलियम बेंटिक के अंदर। ही वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब इनकी जो अथॉरिटी थी लॉ मेकिंग की वो चली गई थी गवर्नर जनरल के पास, ठीक है, ऑफ इंडिया के पास। तो अब जो है बिकॉज अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इनको अब इनके जो लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर्स थे ये लौटा दिए गए बॉम्बे और मद्रास को, ठीक है। इट डज रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। इनको रिवर्स किया गया जो भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी, जैसे कि अभी मैंने बताया जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आई थी 1833 में, सारी अथॉरिटी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई थी, वो रिवर्स किया गया वापस से, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इन दोनों को दी गई। एंड रीच इट क्लाइमैक्स अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। वही यही बता रहा है, जो 1773 और 1833 में सेंट्रलाइजेशन हुआ था इसको अब ख़त्म किया गया, रिवर्स किया गया और सभी को अपने पावर्स दिए गए। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। अब क्योंकि सभी को उनके पावर्स लौटाए जा रहे हैं, मद्रास, बॉम्बे, आगरा, जितने भी प्रेसिडेंसीज अभी तक थी उन सबको उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दिए जा रहे थे, उनको लॉ मेकिंग पावर्स दिए जा रहे थे। तो ये जो भी पॉलिसी थी ना लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन का, इसने बहुत ही ज़्यादा इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को दिया 1937 तक, ठीक है। तो वो जब हम 1937 का एक्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी ये बस ऐसे एक ओवरव्यू दे रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, ठीक है। नए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनने लगे, किसके लिए, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए, पंजाब के लिए, ओके, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1862, 1886 एंड 1897 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बंगाल 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस 1886 में और पंजाब 1897 में अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के हकदार थे, मतलब उन्हें मिल चुका था। इट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट, हो सके, आराम से हो सके काउंसिल में, इसके लिए रूल्स एंड ऑर्डर्स देने का बनाने का जिम्मेदारी वॉइसरॉय को दे दिया गया था। इट ऑल्सो गिव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। अब एक पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। एंड इट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। सो ये लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो सिस्टम डाला था। और ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था कि इसमें जो वॉइसरॉय के काउंसिल के मेंबर्स हैं ना, उसमें से एक जो मेंबर है उसे इंचार्ज बनाया जाएगा वन या मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड उसे ऑथराइज किया जाएगा टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट, ठीक है। मान लो इसके इस एक जो ये काउंसिल है इसकी वॉइसरॉय की, उसमें से मतलब हर कुछ कुछ मेंबर्स को डिपार्टमेंट्स दे असाइन होंगे अपने अपने। तो मान लो किसी एक डिपार्टमेंट से एक मेंबर को चुनेंगे वॉइसरॉय, ठीक है, एक मेंबर चुने इस डिपार्टमेंट से, ठीक है। एंड इसको इंचार्ज बनाया गया है इस डिपार्टमेंट का, ठीक है। एंड इसके पास अथॉरिटी है कि ये फाइनल ऑर्डर इशू करेंगे। तो जो भी डिस्कशन होगा इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट के जो भी मेंबर्स डिसीजंस लेंगे, फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होगा, फाइनल डिसीजन होगा इस मेंबर के हाथ में जो कि इंचार्ज है इस डिपार्टमेंट का, राइट। दिस इज़ व्हाट द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज, ठीक है। तो इस अपने डिपार्टमेंट के मैटर में ये अपने डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव है एंड दिस वाज नोन एज द पोर्टफोलियो सिस्टम। ये इंचार्ज बेस्ड डिपार्टमेंट को और फाइनल डिसीजन इसके अंडर लाई कर रहा है, सिंपल, ठीक है। इट एम्पावर द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। अब वॉइसरॉय ऑर्डिनेंसेस डाल सकते हैं, ठीक है, विदाउट कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के अब खुद से भी ये कुछ लॉज बना सकते हैं जिन्हें ऑर्डिनेंसेस कहते हैं। एंड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, ठीक है, अब इमरजेंसी वाला प्रोविज़न आया, ठीक है। कब कर सकते हैं, तो इमरजेंसी के दौरान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कभी भी बना दे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिना पूछे वॉइसरॉय ऑर्डिनेंसेस इशू करेंगे जब इमरजेंसी होगी, यानी जब पब्लिक ऑर्डर हिल रहा होगा या गड़बड़ हो रहा होगा। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वॉज 6 months। तो ये जो लॉ बनाया गया ना, जिसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है, बिकॉज ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछ कर नहीं बनाया गया या उनसे डिस्कस कर नहीं बनाया गया। तो इमरजेंसी के दौरान वॉइसरॉय कोई भी ऐसा नेसेसिटी
अगर है तो कदम उठा सकते हैं जब इमरजेंसी है, जब पब्लिक ऑर्डर सही से नहीं चल रहा, एंड उस ऑर्डिनेंस को 6 मंथ्स का लाइफ दिया गया है, ठीक है। तो 6 मंथ्स के बाद इट विल सीज टू गिव इफेक्ट, ठीक है। देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, अब इसमें क्या हुआ कि द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज दैट इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब सेंट्रल या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल्स मेंबर की संख्या बढ़ गई थी, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे? इंडियन मेंबर्स थे, राइट। 3 इंडियन मेंबर्स, इफ़ यू रिमेंबर, जैसे अभी हमने पढ़ा, वॉइसरॉय ने अपॉइंट किया था राजा ऑफ बंगाल, महाराजा ऑफ पटियाला, एंड लास्ट वन वाज दिनकर राव। ऑफिशियल मेजॉरिटी इनके पास थी, ठीक है। मतलब किनके पास थी? ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, मतलब इनके तादाद तो बढ़ा दिए गए थे, इनकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेन मेंबर्स थे, एडिशनल नहीं थे, जो कि पहले से थे, उनके ही पास थी, ठीक है, ऑफिशियल मेजॉरिटी। इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस इंक्रीज हुए और उन्हें पावर दिया गया फॉर डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सिंपल है। It provided for the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Council and Bengal Chamber of Commerce। तो इसका मतलब क्या है कि नॉमिनेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को, ठीक है, बाय द वॉइसरॉय, ठीक है। किसमें? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाय वॉइसरॉय। किसके थ्रू? तो ये जो अपॉइंट करेंगे ना जो भी मेंबर्स, वो रिकमेंडेड होंगे, ठीक है, किन से? तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जितने भी थे उनके द्वारा ये रिकमेंडेड होंगे लोग, और इस रिकमेंडेड लोग को वॉइसरॉय अपॉइंट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। सेकेंड इज that of the provincial legislative council by the governors on the recommendation of the district board, municipalities, universities, trade associations, जमींदार्स and chamber। तो legislative council में किनके recommended members गए? provincial legislative council और बंगाल chamber of commerce के। यहाँ पे provincial legislative council में कौन कौन से members आएंगे? तो वो recommended members जिनको recommendation मिली है किन से? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनिसिपैलिटीज से, यूनिवर्सिटीज़ से, ट्रेड एसोसिएशन से, ज़मींदार से और चैम्बर्स से, ठीक है। ठीक है, मैं ये एक बार फिर से समझा देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बिकॉज देखिए नॉमिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगे इसका प्रोविज़न बना, ठीक है, प्रोविज़न फॉर अपॉइंटमेंट। अब क्या होगा कि जो वॉइसरॉय है ना वो अपॉइंट कर सकते हैं इन द व्हाट इन इज एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स अपॉइंट होंगे, ठीक है, जो भी मेंबर्स अपॉइंट होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो मेंबर्स किन के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे या किन के द्वारा ये क्या कहता है रिकमेंडेड होंगे। सो रिकमेंडेशन उनको मिलेगी, उन मेंबर्स को रिकमेंडेशन दिया जाएगा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। ये थी सिंपल पहला, वो जो पहला पॉइंट था ये। एंड सेकेंड, और वॉइसरॉय किन्हें रिकमेंड कर रहे हैं? तो रिकमेंडेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ व्हाट? प्रोविंसेस। अब प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, जैसे ये सेंट्रल पार्ट था, सेंटर के लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स अपॉइंट हो रहे हैं बाय द रिकमेंडेशन ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस, एंड इनको अपॉइंट कर रहे हैं वॉइसरॉय, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंसेस के जो थे उनको कौन कर रहे हैं? तो उन्हीं को रिकमेंड करने का काम कर रहे हैं कौन? म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए, जो यहाँ मेंशन है आपके बुक में, हेयर दैट म्यूनिसिपैलिटीज़
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। ठीक है, अब ये रिकमेंड करेंगे किसमें, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। बट अपॉइंट कौन करेगा, वाइसरॉय। नाउ द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन for the use of election and filling up some of the non-official seats both in the central and provincial legislative council। ठीक है, तो बस एक्ट ने कुछ लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजंस बनाए। ठीक है, किस लिए, इलेक्शन के लिए। यहाँ से इलेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, इलेक्शन की यहाँ से वर्ड ही इलेक्शन अब जाकर शुरू हो रहा है, अदरवाइज अभी तक नॉमिनेशन और रिकमेंडेशन यही सब हो रहा था। तो अब इस एक्ट ने लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजंस बनाए, कुछ लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजंस इलेक्शन के, ताकि नॉन ऑफिशियल सीट्स को फिलअप किया जा सके। किस किस में, तो सेंट्रल भी और प्रोविंशियल भी। ठीक है, किस किस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो वर्ड इलेक्शन वॉज हाउ एवर नॉट यूज इन दिस एक्ट। अच्छा, ये वर्ड इस बुक में यूज़ हो रहा है, ये वर्ड इलेक्शन को यूज़ एक्चुअली प्रॉपरली किया नहीं गया था। ठीक है, लाइक प्रोसेस इलेक्शन वाला था, बट द वर्ड इलेक्शन वॉज नॉट यूज इन द एक्ट एंड द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज द नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज़। ठीक है, इस प्रोसेस को कैसे डिस्क्राइब किया गया, हो रहा था इलेक्शन, लेकिन इस प्रोसेस को बोला गया नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज़। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे एंड लॉर्ड मिंटो उस टाइम के वाइसरॉय थे। ठीक है, इसलिए इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। इसके फीचर्स कुछ इस तरह से थे कि कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60। अब 16 से बिल्कुल 60 पहुँच गया। देख रहे कितना अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है साइज़ में। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 16 मेंबर्स थे वो अब सीधा 60 मेंबर्स हो चुका था, एंड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के यूनिफॉर्म नहीं थे। ठीक है, वो मतलब फिक्स नहीं था। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोविंसेस हैं ना, मद्रास है, बॉम्बे है, आगरा है, या जितने भी प्रोविंसेस हैं, इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स के नंबर है वो यूनिफॉर्म नहीं कि इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किसी में सपोज 14 है तो किसी में 12 है तो किसी में 8 है, ऐसा चल रहा है प्रोविज़न। नाउ इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही ऑफिशियल मेजॉरिटी है, कंटिन्यूड, एंड बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। ठीक है, अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी है, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें आप नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी दे सकते हो। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी हो सकती है, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेंड होगी एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल। For example, members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget and so on. अब deliberative functions of the legislative council बढ़ गए, तो कुछ कुछ functions ऐड हुए हैं। ठीक है, बोथ लेवल में, यानी सेंट्रल प्रोविंशियल बोथ लेवल में, जैसे कि मेंबर्स को अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड है आस्क करना। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस लाइक अब वो अकाउंटेबल ठहरा सकते थे, क्वेश्चंस कर सकते थे, रिजोल्यूशंस मूव कर सकते थे ऑन बजट। ठीक है, अपने एडवाइसेस एंड रेजोल्यूशंस वो दे सकते थे, रख सकते थे। तो ये कुछ पावर्स थी जो दोनों ही लेवल पे, यानी सेंट्रल और स्टेट लेवल पे मेंबर्स को दी जा रही थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स को। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy Executive Council. He was appointed as the law member. ठीक है, पहली बार इंडियन का एसोसिएशन था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अभी तक हमने देखा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियन का रिप्रेजेंटेशन आया, एंड इट वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इन्हें लॉ मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स।
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम आया यहाँ से, एंड एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, अब इनके पास एक अपना खुद का इलेक्टोरेट होगा। इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होंगे बाय मुस्लिम वोटर्स। ठीक, तो इनको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और रिलीजन के हो तो इनको वोट नहीं दे सकते हो। दैट इज कॉल्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट। दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, कम्युनलिज्म का इंट्रोडक्शन इन्होंने किया इस एक्ट के थ्रू बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, यानी मुस्लिम्स जो हैं अब सिर्फ मुस्लिम्स वोटर्स के थ्रू इलेक्ट हो रहा है। सो दिस act legalized communalism and Lord Minto came to be known as the father of communal electorate। ठीक है, इनको communal electorate का फादर बोलना जाने लगा, लॉर्ड मिंटो को। ओके, लॉर्ड मिंटो क्या थे? मॉर्ले तो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। लॉर्ड मिंटो वाज द गवर्नर जनरल, मतलब वाइस गवर्नर जनरल को का नाम हटा के वॉइस रॉय कर दिया गया है। सो वॉइस रॉय। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार। ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटीज़ और जमींदार के लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अब 1919 के एक्ट पे आता है। अगस्त 1917 को द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया पहली बार कि इनका ऑब्जेक्टिव है क्या, टू इंट्रोड्यूस अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ग्रेजुअली ये चाहते हैं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो इंडिया में। ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 was thus enacted and which came into force in 1921। तो इसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के इंट्रोडक्शन के लिए इन्होंने एक्ट ऑफ 1919 इनैक्ट किया एंड ये फोर्स में आता है 1921 में, और इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मोंटेग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द वॉइस रॉय। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू कैटेगरीज, नेमली द सेंट्रल सब्जेक्ट एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, अब आप इसको रिलेट कर पाओगे जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि 7th शेड्यूल में वी हैव सेपरेट सब्जेक्ट्स फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। ठीक है, जिसमें यूनियन लिस्ट है जिसपे सिर्फ द सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट लिस्टेड है जिसपे सिर्फ यूनियन लॉ बना सकती है, एंड स्टेट लिस्ट है जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स लिस्टेड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है। ठीक है, उसमें यूनियन इंटरफेयर नहीं करेगी और यूनियन वाले में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोविज़न लिया गया है अब आपको समझ में आएगा कि ये मोर्ले-मोंटेग्यू रिफॉर्म दैट इज़ द एक्ट ऑफ 1919 से लिया गया था। That is why it is important to read this chapter, this historical background, क्योंकि आपके बहुत सारे दिमाग के पत्ते खोलेगा जब आप आगे पढ़ रहे होगे। सो ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को 2 कैटेगरीज में डाला गया, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज डन बाय द डिवोल्यूशन रूल। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को डिवोल्यूशन रूल्स कहा गया, फ्रेम अंडर द एक्ट, एंड दीज रूल्स फैसिलिटेट the delegation of authority from the center to the province। ठीक है, कुछ सेंटर की जो अथॉरिटी थी काइंड ऑफ फेडरल थिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गई प्रोविंसेस में। ठीक है, तो ये जो रूल था इसने फैसिलिटेट किया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सेंटर टू द प्रोविंस। मतलब अब अथॉरिटी जो सेंटर से है वो कुछ अथॉरिटीज़ यानी कुछ पावर्स अब प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी कि एक्ट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। भाई सेंट्रल का जो बहुत ज़्यादा होल्ड था प्रोविंसेस में वो अब रिलैक्सड हो रहा था, लाइक वो कम हो रहा था। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन द रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। भाई जो भी दिया गया सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे वो सेपरेट हुए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को ऑथराइज किया गया कि आप इन सब्जेक्ट्स पे रिस्पेक्टिव लिस्ट पे अपने अपने सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाओ, एंड हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। तो फिर भी जो कंप्लीट अथॉरिटी थी ना, मतलब वो थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट तो हो गई थी, लेकिन
स्ट्रक्चर जो था गवर्नमेंट का वो अभी भी सेंट्रलाइज और यूनिटरी था, यानी कि मोर पावर वाज देयर इन द सेंट्रल ओनली। तो जब सेंटर पावरफुल होता है प्रोविंसेस से तो हम उसको ट्रू फेडरेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड ही था, यानी मोर पावर वाज देयर इन द सेंटर ओनली एंड प्रोविंसेस को कुछ पावर्स दिए गए थे, कुछ छूट दी गई थी, या फिर कहो कि जो सेंटर का होल्ड था बहुत ज़्यादा, प्रोविंसेस पे बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल था उसको रिलैक्स किया गया था बस, ठीक है, कम किया गया था। इसीलिए स्ट्रक्चर को अभी भी सेंट्रलाइज और यूनिटरी ही माना जाएगा। एंड फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स। अब जो जैसे यूनिटरी सब्जेक्ट्स हुए यानी कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स हुए, एंड ओके आई वांट से यूनिटरी, लेट्स कीप इट सेंट्रल ओनली। तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, राइट। तो सेंट्रल सब्जेक्ट वाज देयर, इसमें तो कुछ पार्ट्स वगैरह नहीं निकले इसके, लेकिन इसके पार्ट निकल गए, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के दो पार्ट्स हुए जो कि हैं ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, ठीक है। एक पार्ट हुआ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा हुआ रिजर्व्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे जो भी आपका गवर्नेंस के अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में थे। एंड जो रिजर्व सब्जेक्ट्स था वो इंक्लूड करता था पब्लिक ऑर्डर को, यानी कि पॉलिटी को, जैसे कि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स एडमिनिस्टर्ड होते थे गवर्नर के थ्रू with the aid of ministers responsible to the legislative council। जो भी legislative council responsible हैं, जो भी member हैं, ministers हैं legislative council के, उनके aid और advice के साथ गवर्नर के थ्रू ये administer हो रहा है। कौन? transferred subjects। And the reserved subjects on the other hand were administered by the governor in his executive council without being responsible to the legislative council। okay? ठीक है। अब ये transferred subject में क्या हुआ थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, है नहीं कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें। ट्रांसफर सब्जेक्ट में बस ये हुआ कि गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहे हैं इनको, एंड जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इतना याद रखना है, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। और रिजर्व सब्जेक्ट जो हैं वो ऑन द अदर हैंड, इसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेशन तो गवर्नर ही कर रहे हैं, बट इनके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इनके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिनिस्टर्स है वो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। सो इस डुअल सिस्टम को डायरकी बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इस डुअल स्कीम को डायरकी बोला गया, एंड अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाई-आर्के विच मीन्स डबल रूल। However, this experiment was largely unsuccessful। इस एक्सपेरिमेंट को अनसक्सेसफुल करार दिया गया, ये बिल्कुल भी उस टाइम फ्रेम के लिए सूटेबल नहीं था, तो अनसक्सेस रहा। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। तो पहली बार बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए, इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस किया गया बाईकैमरल लेजिस्लेचर से, कंसिस्टिंग एन अपर हाउस एंड अ लोअर हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाईकैमरलिज्म जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरकी नहीं है, ठीक है, बट वी हैव बाईकैमरलिज्म एंड प्रोविज़न ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। तो ये यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड इसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस में बदल दिया गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट was called the upper house and the legislative assembly was called the lower house, and the majority of members of both the houses were chosen by direct election, ठीक है। It required that the 3 of the 6 members of the Viceroy Executive Council, जो 6 members थे Viceroy Executive Council के, उसमें से 3 members को, ठीक है, इंडियन होना चाहिए, ऐसा एक्ट में प्रोविज़न दिया गया था, ठीक है। अदर दैन कमांडर इन चीफ, तो काउंसिल में कमांडर इन चीफ भी था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनको छोड़कर जो बाकी के 3 मेंबर्स होंगे, यानी 5 में से 3, क्योंकि एक तो कमांडर इन चीफ ही होगा, ठीक है। तो 1 + 5 मेक्स द 6, एंड इसमें से जो 3 मेंबर्स हैं वो इंडियन होने चाहिए,
It extended the principle of communal representation by providing separate electorate for Sikh, Indian Christian, Anglo-Indians and Europeans. तो ये जो communal representation वाला norm है इनका अभी भी बरकरार था. सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने दिया फॉर सिक्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन. ठीक है, मतलब इनको इनके कम्युनिटी के लोग ही इलेक्ट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं. इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और अदर क्वालिफिकेशन. सो हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ लाइक इक्वल हर एक किसी का वोट का सेम वैल्यू है, राइट. यूनिवर्सल एरर फ्रेंचाइज है. बट यहाँ पे फ्रेंचाइज कुछ इस प्रकार थी कि कुछ ही लोगों को वोट करने का अधिकार था और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड अदर क्वालिफिकेशंस. ठीक है. इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर. एक हाई कमिश्नर का ऑफिस इंट्रोड्यूस हुआ फॉर इंडिया इन लंदन. ठीक है. तो ये हाई कमिश्नर का ऑफिस इज फॉर इंडिया ओनली, बट इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन द लंदन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस had to performed by the secretary of the state. ठीक है. कुछ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के जो फंक्शंस थे वो ट्रांसफ़र हो गए तुम्हारे हाई कमिश्नर के ऑफिस में. सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के ऑफिस के कुछ फंक्शंस ट्रांसफ़र हुए एंड वो लंदन में थे. लंदन में बैठकर वो एडमिनिस्टर करेंगे उन पावर्स को. It provided for the establishment of Public Service Commission. Public Service Commission established हुआ. Hence, a Central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servants. So, civil servants को recruit करने के लिए Central Public Service Commission was established in 1926. It separated for the first time provincial budgets from central budget. तो अब state का अपना खुद का budget होगा, यानी provinces. उस टाइम तो state नहीं था ना, उस टाइम तो provinces कहते थे. तो प्रोविंसेस के अपने खुद के बजट्स होंगे, सेंट्रल का बजट अलग होगा. एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट देयर बजट. तो अब जैसे हमारे सिस्टम में भी ये है, सेम चीज़ है कि जो द स्टेट लेजिस्लेचर है, दे हैज़ देयर ओन पावर टू इनैक्ट देयर बजट्स, राइट. देयर मनी बिल ऑफ द स्टेट मनी बिल. ठीक है. और सेंट्रल पावर में भी एक मनी बिल, सेंट्रल पार्लियामेंट में भी हमारा एक मनी बिल पास होता है. एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दे ऑल्सो पास द स्टेट दैट मनी बिल विच इज़ टोटली फॉर दैट स्टेट ओनली. तो ये फर्स्ट टाइम ये आइडिया कहाँ पे आया था इंडिया में? तो ये थ्रू एक्ट ऑफ 1919 स्टार्ट हुआ था. प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट, ठीक है, सेपरेट हुए एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी दी गई कि वो अपने बजट्स खुद इनैक्ट कर सकते हैं. इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशंस. स्टैट्यूटरी कमीशंस अपॉइंटेड हुए टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स. ठीक है. तो इसमें कहा गया कि एक कमीशन बनेगा जो लेट डाउन करेगा रिपोर्ट आफ्टर 10 years ऑफ वर्किंग ऑफ दिस. एक रिपोर्ट तैयार करेगा वो कमीशन and it will be appointed to inquire into the working of the report. So this is what it is. It proposed establishment of Chamber of Princes, also known as Narendra Mandal. ठीक है. And the chamber was inaugurated in 1921. तो एक Chamber of Princes जिसमें like I think royal जिसमें कि रॉयल मेंबर्स होंगे. ठीक है. जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता था और इसको शुरू किया गया 1921 में. And it consisted of 120 members, that is princes of 100 states and 12 representative of other states. ठीक है. 108 कंट्रीज़ के प्रिंसेस उसमें शामिल थे 120 मेंबर्स में और 12 मेंबर्स अदर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे. एंड इट वाज हेडेड बाय द वॉइस रॉय. एंड इस चैम्बर को हेड कौन कर रहा था? वॉइस रॉय. इट फैसिलिटेटेड द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है. जो भी कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, इनके बीच 120 मेंबर्स के बीच वो वॉइस रॉय कंसल्ट करते थे. ठीक है. ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. साइमन कमीशन आया क्योंकि अभी हमने पढ़ा था एक कमीशन को अपॉइंट करने का प्रोविज़न था आफ्टर 10 years टू पब्लिश द रिपोर्ट ऑन द गवर्नेंस. सो इन नवंबर 1927, यानी कि जब 10 years का टाइम दिया गया था ना, तो ये 8th year में ही ये कमीशन अपॉइंट हो चुका था. मतलब 2 साल पहले ही इसे अपॉइंट कर दिया गया था. And the British government announced the appointment of a 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir
साइमन टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सारे न्यू प्रोविजंस अभी जस्ट हमने पढ़े, उन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन एक 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन बनी एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश, ठीक है, सारे मेंबर्स जो थे ना वो ब्रिटिश थे, और इसीलिए ऑल द पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन,